جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 2 میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، اور اس نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے BRMC براک بلڈرز کا۔ اب چلتے ہیں ہمارے اگلے پارٹیسپینٹ کی جانب، بتائیے جی اگلے پارٹیسپینٹ ہے ہمارے پاس دانش فرید، اور ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے، اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں فیصل بھائی۔ تمام ججز کی اجازت سے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطار لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے روزے کی جالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نالی۔ ماشاءاللہ۔ جی نصیر شاہ جی بتائیے۔ میرے خیال میں اس پہ تو آپ کو جج کرنا چاہیے، ٹاسک آپ نے دیا نہیں جی ہماری ادروائز ماشاءاللہ بہت اچھا جو ریکوائرمنٹ ہے اس سیگمنٹ کی کہ جہاں سے سر لینا ہے آپ نے ادھر سے ہی آپ نے انترا لیا، اور بہت احسن انداز سے آپ نے اس کو نبھایا۔ میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اتنی خوبصورت آواز ہے، اس میں رینج بھی ہے، جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ آواز کو دبا کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ چیز میں نے بھی نوٹ کی، آواز کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ ہاں آپ کھل کے ایک دفعہ ٹرائی کریں اس کو، دوبارہ سے انترا لیں۔ کہاں سے لیا تھا آپ نے؟ میں ایک ہاتھ سے، یہ دیکھیں، آپ رکیں ایک منٹ، آپ نے اب بھی منہ کو بند کر کے اٹھایا، تو آپ جب بھی انترا پڑھیں، نعت پڑھیں، تو منہ کو کھول کے پڑھیں، جیسی آپ کی آواز ہے اور اچھے انداز سے آپ کا ووکل باہر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے۔ تو ادروائز آپ نے اچھا نبھایا ماشاءاللہ۔ جی نیازی بھائی، جیسا کہ میں نے پہلے راؤنڈ میں بھی کہا تھا کہ انہوں نے بہت جس گرام میں انہوں نے شروع کیا تھا پہلے راؤنڈ میں بھی، اور پوری وہ جو تھی انترا جو تھا انہوں نے پڑھا تھا، وہی بات شاہ صاحب نے بھی کہی کہ یہ آواز کو کھل کے پیش نہیں کر رہے جو کہ ہونی چاہیے۔ شاید یہ ڈرتے ہوں کہ کہیں میں آواز کھولوں گا تو میرا سر کہیں نہ گم جائے، یا
आवाज़ ब्लास्ट ना हो जाए। देखें मुस्कुरा रहे हैं वो मेरी बात पे, तो इनको जो है ये डर खौफ नहीं करना चाहिए। वैसे जो गलती कर लेते हैं उसको अपने अंदर महसूस हो जाता है कि मुझसे ये गलती हो चुकी है। हो चुकी है। वैसे माशाल्लाह सुर अच्छा लगा है, सुर में पुख्तगी है, जहाँ जहाँ जो जो जगह बनती थी बनाई है। बस सिर्फ ये है कि आप थोड़ा सा खुल के पढ़ें। माशाल्लाह आपकी आवाज़ अच्छी है। फवाद भाई आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो माशाल्लाह काफ़ी समझदार हैं। नहीं, आप लोगों की दुआ है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तिलाफ़ करना चाहूँगा अपने दोनों जजेस से, आवाज़ के लिहाज से। जो ये इनको बार बार कह रहे हैं कि जी आप आवाज़ खुल के नहीं पढ़ रहे, आपने आवाज़ को दबाया। मेरे हिसाब में इनकी आवाज़ मीडियम रेंज की आवाज़ है। अच्छा, जैसे ये कलाम हमारे बहुत सीनियर नातख़्वां कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब ने पढ़ा है, जिस तरह से उनकी आवाज़ है मीठी आवाज़, मीडियम रेंज की आवाज़ है, उसी तरह से इनकी भी आवाज़ उसी लेवल की है, मीडियम रेंज की। वैसे लगता है इनकी आवाज़ से कि रेंज मुझे ऐसे इसमें जैसे रिक्वायर है ना एक लफ्ज़ है जी, उसके हिसाब से जो मूवमेंट होती है ना, देखें Next मुंह खोल movement के इनकी पढ़ना, वो नहीं हो रही। सिर्फ मुंह आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मुंह खोल के पढ़े ना। आपकी उस तो बहुत बात से खूबसूरत है। इख्तिलाफ़ नहीं है कि मुंह खोल के पढ़ें या मुंह बंद करके पढ़ें, लेकिन मेरा इख्तिलाफ़ सिर्फ इनकी आवाज़ के लिहाज से कि इनकी आवाज़ ऐसी ही है। जी जी, ये मुंह खोलेंगे भी तब भी इनकी आवाज़ ऐसी, लाउड होना अलग बात है, लेकिन इनकी आवाज़ जो है वो इसी तरह की है, मीठी आवाज़ है और बहुत प्यारी आवाज़ है। आप बहुत अच्छे अंदाज़ में, मैंने जैसे पहले कहा कि धीमे अंदाज़ में और बहुत अच्छे अंदाज़ में आप पढ़ते हैं माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल फवाद भाई, इनकी आवाज़ अगर इन मिठास जो है, अगर इन्होंने मुंह खोल लिया या इससे ऊपर चले गए, मुझे नहीं लगता कि वो मिठास इनमें बाकी रहेगी। मीठी आवाज़ इनकी है, वो फिर ये खुद ही हज़म कर लेंगी। बहुत खूबसूरत। वैसे फवाद भाई हंस रहे थे तो मैंने कहा कुछ ना कुछ फिर होने वाला है। बहुत प्यारा इन्होंने पढ़ा, इनकी आवाज़ बहुत मीठी है। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। ये कलाम वैसे ही मेरा फेवरेट है। बहुत प्यारा कलाम है, लंबी मदीना बहर का पाक के कलाम, वो मनाज़िर इंसान के सामने कंपोजिशन आते बहुत हैं। प्यारी है। फिर इन ऐसा लग रहा था ये कलाम, ये कंपोजिशन इन्हीं की आवाज़ के लिए है। फवाद भी जो उन्होंने पढ़ा ना, जो एक हाथ से दिल, इसका जो है अशार इन्होंने पढ़े, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुए था, तो दूसरे हाथ दुआ रोज़े के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ। तो मदीना पाक की कुछ बरक़ात और कुछ फजीलत ही ऐसी है नाज़रीन कि जब मैं ख़ुद वहाँ पे पहुँचा तो आप यकीन कीजिए कि फवाद भाई इस बात पे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि सिर्फ दिल में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त हाथ पे रख देते हैं। जैसे वो एक नात शरीफ का शेर के हाथ उठने से पहले ही देखो भर दिया मेरा दामन ये खाली, माशाल्लाह। जिनको कहते हैं शाफ़ाए महशर, जिनके कांधे पे कमली है काली, सुभान अल्लाह। तो वहाँ तो हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आती। वो खुद ही जान लेते हैं। क्या माशाअल्लाह। बात है, सुभान अल्लाह। पाक हम सबको ले जाए बार बार। आमीन। और वहाँ पे भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी पेश करें अपनी। आमीन। अदब हाज़िरी। और मेरा तो ईमान ये कि ये हाज़िरी पेश करते करते उनकी बारगाह में हमारी रूह परवास कर जाए तो फिर क्या ही बात क्या है। ही बात। जब बरोज़े माशर उठे तो तब भी उनकी सना करते करते उठे इंशाअल्लाह। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। आप चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की जानिब, जिनका ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से है। मुश्तबा अहमद छोटी सी जान है, जिनके लिए हम अपने मुअज़्ज़िज़ जज की जानिब फिर जाएंगे, जनाब सरदार मोहम्मद नियाज़ कारी साहब की जानिब। ये मेहरबानी है जो आप मुझे इतना मुअज़्ज़ज़ करके पेश करते हैं। आप मेरे असातिज़ा में हैं जी, हम आपकी बदौलत हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम
माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में पढ़ा। न्याज़ भी बताइए। माशाल्लाह अच्छी कोशिश की है छोटी सी जान ने, स्केल को भी पिक करने की कोशिश की है। यहाँ पे एक लफ्ज़ आपने इन्होंने थोड़ा सा अदायगी में कहा है, ये लफ्ज़ तुम्हारे, ये तुम्हारे है नहीं है इसमें, तुम्हारे तुम्हारे वो नीचे वाली है ना जी। यहाँ पे ये थोड़ा सा लैंग्वेज में इनका थोड़ा सा जो लफ्ज़ है उसकी अदायगी थोड़ी सी अभी छोटा भी है जी। वही मैं कहा छोटी सी जान के लिए माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इन्होंने, अपनी हाज़िरी अच्छी पेश की। शाह साहब क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। टास्क रिक्वायरमेंट जो सेगमेंट की है उस लिहाज से इनका, क्योंकि ये छोटे हैं एज फैक्टर है, एज फैक्टर की लिहाज से खर्च में काफ़ी चेंज होता है, तो उसकी बनिस्बत अगर इनको हाई नोट में दिया जाता टास्क तो ये उसको बखूबी निभाते। अदरवाइज़ इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। हमने इधर वेरिएशंस तमाम चेक करनी है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई ऊपर कोई नीचे, उनकी अगर अपनी नहीं, अगर ये एडल्ट होते तो तब और बात होती। अब इनकी ये छोटी है, आवाज़ पतली है, तो मेरे ख्याल उसी हिसाब से इनको इस राउंड में पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, पूरे मिलने चाहिए। तो दूसरी बात यह है कि जैसे सुर को निभाने वाली बात है, तो ये इतने अच्छे अंदाज से लफ्ज़ों की बांट करते हैं, बहुत सुरीला माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। फवाद भाई? जी माशाल्लाह अच्छा पढ़ते हैं, समझ रखते हैं नात के हवाले से, सुर के हवाले से। और जिस शख्सियत के ये शागिर्द हैं हाफिज़ जुनैद मुस्तफ़ा साहब, माशाल्लाह जितने वो समझ से और जितने सोच के साथ वो कलाम को पढ़ते हैं, मुझे उनको सुन के बहुत मज़ा आता है। तो ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे मज़ीद बेहतर पढ़ेंगे। एज फैक्टर इनका जो है उस वजह से स्केल मैच नहीं किया, लेकिन वो इनकी उम्र के हिसाब से इनको ये छूट दी जाएगी। जी जवाद भाई? बिल्कुल, मैं यही डर रहा था कि कहीं एज की वजह से ये कह ना दें कि ये मतलब इनसे ये टास्क नहीं हो पाया, क्योंकि ये एडल्ट नहीं है, अभी छोटे हैं, तो उस वजह से इनको छूट है। ये मेरे ख़्याल से तो इन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया, बहुत खूबसूरत पढ़ा। जी नाज़रीन, आपने सुना मुज्तबा अहमद साहब को, जिनका कोड नंबर है 0041, जिनका ताल्लुक ज़िला एबटाबाद से। आप इनको फिर से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से सुनने का मौका हासिल कीजिए। हमारे सेकंड राउंड के आखिरी पार्टिसिपेंट, जिनका ताल्लुक पेशावर से है, हाफिज़ ग़ुलाम ताहा जिनका नाम है, और जिनको टास्क देंगे जनाब सैयद नसीर अहमद शाह साहब। वो ज़ीशान गया साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। नेमतें बांटता जे समत वो ज़ीशान गया। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हाफिज़ ग़ुलाम ताहा साहब गुलाए क़िदत पेश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक के टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।